کیا قومی ایئر لائن پی آئی اے کے اثاثے صرف $1 مالیت کے ہیں؟ پی آئی اے کے لیے محض 10 ارب روپے کی بولی، قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے 85 ارب کی رقم کیسے مختص کی گئے؟ بلو ورلڈ سٹی نے اس کے مقابلے میں صرف 10 ارب روپے کی پیشکش کیوں کی؟ کیا باکمال لوگوں کی ایئر لائن کی نجکاری میں حکومت بری طرح پھنس گئی؟ پی آئی اے کے منافع بخش روٹس کون سے ہیں؟ پی آئی اے کے پاس کتنے جہاز آپریشنل ہیں؟ کیا پنجاب حکومت پی آئی اے کی خریداری پر غور کر رہی ہے؟ کیا پی آئی اے کی نجکاری مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی؟ ان تمام سوالات پر بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنزا بشیر۔ ویور، شاندار ماضی کی حامل قومی ایئر لائن پی آئی اے، جس کا شمار صف اول کی کمپنیز میں ہوتا تھا، لیکن اب لڑکھڑاتی اور قرضوں پر جکڑی تباہال پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کیوں، کب اور کیسے شروع ہوا؟ باکمال لوگ، لاجواب پرواز۔ پاکستان کے معروف شاعر فیض احمد فیض نے یہ جملہ پی آئی اے کے لیے لکھا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا بھر سے نہ صرف مسافر اس فضائی سروس کے ذریعے سفر کرنے کو فخر سمجھتے تھے، بلکہ بہت سی خلیجی ریاستوں کی فضائی کمپنیز کے عملے کی تربیت سازی بھی اسی قومی ادارے کے سپرد تھی۔ مگر پھر وقت کی اڑان تیز اور پی آئی اے کی سروس سست اور معیار گرتا چلا گیا۔ اگرچہ اس کی بہت سی سیاسی اور معاشی وجوہات بھی رہی ہیں، مگر ان پر بات کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جملہ تبدیل ہوا اور باکمال لوگ، لاجواب سروس قومی ایئر لائن کی گرتی سروس پر طنز بن کر رہ گیا، اور اس طنز نے بہت سے مواقعوں پر حقیقت کی شکل بھی اختیار کی۔ اب حکومت پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے تحت خسارے میں چلنے والے چند قومی اداروں کی نجکاری کرنا، اور اسی سلسلے میں قومی ایئر لائن کی نجکاری کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں بولی لگائی گئی تھی۔ پاکستان کے نجکاری کمیشن کی جانب سے بولی سے قبل اس کی کم از کم قیمت 85 ارب روپے رکھی گئی تھی۔ تاہم پاکستان کی قومی ایئر لائنز پی آئی اے کی نجکاری کے سلسلے میں ایک نجی کمپنی کی طرف سے اسے محض 10 ارب روپے میں خریدنے کی پیشکش کی گئی۔ تاہم اس کمپنی کی جانب سے اس بولی کا جائزہ آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان کی وفاقی کابینہ لے گی، یعنی یہ فیصلہ ابھی بھی ہونا باقی ہے کہ آیا اس بولی کو منظور کیا جائے گا یا مسترد۔ ویورز، رواں ہفتے پی آئی اے کے 60% حصص کی فروخت کے لیے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی بلو ورلڈ سٹی نے 85 ارب روپے کی کم از کم قیمت کے مقابلے میں صرف 10 ارب روپے کی بولی جمع کرائی، جو ریفرنس پرائس کا تقریباً 12% حصہ بنتا ہے۔ پی آئی اے گزشتہ کئی برسوں سے خسارے کا شکار ہے، اور اس کا شمار حکومتی سرپرستی میں چلنے والے ان اداروں میں ہوتا ہے جو قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ گزشتہ اتوار میں انتظامی تبدیلیوں کے ذریعے بہتری لانے کی تمام تر کوششوں کے بعد پی آئی اے کی نجکاری کی کئی کوششیں بھی ناکام ہوئی۔ اب پی آئی اے کے فروخت کے لیے بولی تو جمع کر دی گئی ہے، تاہم آفر کی جانے والی رقم انتہائی کم ہونے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ غالباً پاکستان کی وفاقی کابینہ نجکاری کمیشن کے بورڈ کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے اسے مسترد کر دے گی۔ ویور، سوال یہ ہے کہ 85 ارب بولی کی ریفرنس پرائس کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا؟ نجکاری کمیشن کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق نجکاری کمیشن کے مالیاتی امور کے ماہر تمام تر حساب کتاب لگا کر نجکاری کمیشن کے بورڈ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر نجکاری کمیشن کا بورڈ اسے کابینہ میں پیش کرتا ہے۔ 85 ارب روپے کی ریفرنس پرائس بھی اسی عمل کے تحت طے کی گئی۔ حکومت کی مقرر کردہ بولی کی قیمت پی آئی اے کی مجموعی بک ویلیو یعنی کتابی قیمت پر مبنی ہے، جبکہ اثاثوں کی اصل قیمت کتابی قیمت سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بک ویلیو کا حساب سالانہ کمی کے بعد لگایا جاتا ہے، اور بعض اوقات مارکیٹ میں قیمت کے اضافے کی وجہ سے اصل قیمت کتابی قیمت سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت پی آئی اے کے مجموعی اثاثوں کی بک ویلیو تقریباً 165 ارب روپے اور 60% شیئرز کی مالیت تقریباً 91 ارب روپے بنتی ہے۔ حکومت نے خریداروں کو راغب کرنے کے لیے کم از کم بولی 85 ارب روپے مقرر کی۔ ویور، سوال یہ ہے کہ پی آئی اے نجکاری میں رکاوٹ کی وجوہات کیا ہیں؟ مئی 2024 کے دوران وفاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم خان نے کہا تھا کہ 830 ارب روپے خسارے والے ادارے پی آئی اے کی نجکاری ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی آئی اے کے تمام واجبات ادا کر کے اسے بغیر کسی بوجھ کے پرائیویٹائز کر رہے ہیں، جو سود مند ثابت ہوگا، کیونکہ تمام پاکستانی ایئر لائنز کا مجموعی حجم ملا کر بھی پی آئی اے کے مقابلے میں کم ہے۔
वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान ने यह भी कहा था कि PIA की सऊदी अरब के लिए हज और उम्रे की परवाजें इंतहाई मुनाफा बख्श रूट हैं। इसी तरह यूरोप, अमेरिका और कनाडा के साथ साथ मशरिक़ वस्ता और दिगर ममालिक के लिए PIA के बिलावास्ता फ्लायर्स मुसाफिरों के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। हुकूमती शराइत पर बात करते हुए साबिक गवर्नर सिंध और साबिक वजीर निजकारी मोहम्मद जुबैर ने कहा कि किसी भी इदारे की निजकारी के मामले में सबसे बड़ा मसला मुलाजमीन का सामने आता है। PIA के मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 7,000 है। मिसाल के तौर पर खरीदने वाली कंपनी ये कहे कि उसे 7,000 नहीं बल्कि 4,000 मुलाजमीन को रखना है, तो सवाल है कि वो उन 4,000 का इंतखाब कैसे करेंगे। अगर आप ये शर्त रख दें कि आपने 7 के 7,000 रखने हैं, तो कौन सारे मुलाजमीन को रखेगा। इसके अलावा टैक्स की मद में वाजिबात का भी मसला था। इस हवाले से मुख्तलिफ पार्टीज हुकूमत से यकीन दहानी चाहती थी कि अगर मुस्तकबिल में कोई टैक्स वाजिबात सामने आए तो वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। PIA की फरोख के लिए निजकारी कमीशन ने इब्तदाई तौर पर 6 बोली दहिंदगान को अहल करार दिया था। ताहम इन 6 में से सिर्फ एक कंपनी ने अपनी बोली जमा कराई, जबकि 5 इस अमल से दूर रहे। हुकूमत ने एयरब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, एयर अरेबिया की फ्लाई जिना, YB होल्डिंग्स प्राइवेट, पाक एथनॉल प्राइवेट और ब्लू वर्ल्ड सिटी की कौमी एयरलाइंस में अक्सरती हसस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था। व्यूवर्स, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी फजाई कंपनी की खरीदारी के लिए सिर्फ एक कंपनी ही सामने आई। PIA की फरोख्त के लिए बोली में शामिल ना होने वाले 3 ग्रुप्स के अहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबर रसाई इदारे को बताया कि उन्हें मुस्तकबिल में हुकूमत के इस मुआहदे पर पूरा उतरने की सलाहियत के बारे में खदशात हैं। इस हवाले से साबिक वजीर निजकारी मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि इस बोली के लिए कोई भी इंटरनेशनल सरमायाकार सामने नहीं आया, तो फिर हुकूमत को बोली की रेफरेंस प्राइस 85 अरब की बड़ी रकम मुकर्रर नहीं करनी चाहिए थी। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इतनी कम बोली इसलिए लगाई क्योंकि उनके अलावा कोई और खरीदार सामने ही नहीं आया। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि हुकूमत अब बुरे तरीके से फंस गई है, ऊपर से IMF की तलवार लटक रही है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को पता था कि हुकूमत ने उसे बेचना ही है, तो उन्होंने इसलिए इसकी बहुत कम कीमत लगाई। व्यूअर्स, अब अहम सवाल ये पैदा होता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने सिर्फ 10 अरब रुपए की पेशकश क्यों की, जहां दिगर बोली दहिंदगान हुकूमती मुआहिदों और शराइत व ज़वाबित के पेश नज़र बोली लगाने के अमल से बाहर रहे। वहीं ये सवाल भी मौजूद है कि जिस फ़ज़ाई कंपनी के मजमूई बुक वैल्यू के मुतालिक 165 अरब रुपए के दावे किए जा रहे हैं, उसकी बोली सिर्फ 10 अरब रुपए क्यों लगाए गए। ब्लू वर्ल्ड सिटी के सरबराह साद नज़ीर के मुताबिक उनकी कंपनी ने इस सिलसिले में आयरलैंड की एक कंसल्टिंग कंपनी साइरस एविएशन की खिदमात हासिल की। हमने PIA के 60% शेयर्स खरीदने की बोली में 10 अरब रुपए इसलिए लगाए गए क्योंकि कंसल्टिंग कंपनी ने हमें कहा कि इसकी बोली $1 लगनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी पर 203 अरब रुपए का कर्जा है और इससे पहले इस पर 800 अरब का कर्जा था, जिसके बाद हुकूमत ने एक होल्ड को कंपनी बनाकर 600 अरब का कर्जा वहां मुंतकिल कर दिया। साद नज़ीर ने वाज़िया किया कि एक ऐसी कंपनी जिसके असासे PIA और निजकारी कमीशन के मुताबिक 150 अरब रुपए के हैं, तो हमने जब इसका जायजा लिया तो हमें पता चला कि हकीकत में इन असासों की कीमत सिर्फ 10 से 11 अरब रुपए बनती है। व्यूवर्स, ये PIA की खाम ख्याली है कि उनके पास फ़ज़ाई रूट्स हैं, यूरोपीय ममालिक के महंगे रूट्स हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो रूट्स बंद हो चुके हैं और उनकी बहाली का कोई इम्कान नहीं है। जो भी प्राइवेट कंपनी आएगी उसे PIA में बड़ी सरमायाकारी करना होगी। PIA के 20 जहाज इस वक्त वर्किंग हालत में होने चाहिए थे, लेकिन उनके सब तैयारे मार्च 2025 में ग्राउंड होने वाले हैं। उनको भी बहाल करने के लिए बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। साद नज़ीर के मुताबिक जिस चीज़ की मालियत $1 है, उसकी 10 अरब की बोली हमने सिर्फ उनकी और अपनी इज्जत रखने के लिए की। व्यूअर्स, यहाँ फैसले हकीकत पर कम बल्कि अवामी तासुर पर ज्यादा किए जाते हैं, तो इस तासुर को अपने और उनके लिए इज्जत अफजा बनाने के लिए हमने माकूल रकम ऑफर की, वरना हकीकत में इसकी कीमत सिर्फ $1 ही है। साद नज़ीर के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल ने पार्लियामेंट में यह बात कही थी कि कोई $1 में भी PIA खरीद ले तो हमें हाथ जोड़कर उन्हें PIA सौंप देनी चाहिए। व्यूवर्स, अब एक अहम सवाल यह भी उठता है कि एक रियल स्टेट कंपनी को बोली के लिए क्यों अहल करार दिया गया। क्या एक रियल स्टेट कंपनी बिना तजर्बे के कोई एयरलाइन चला सकती है? इस बारे में PIA के शोबा मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साबिक सरबराह इरशाद गनी का कहना है कि PIA के लिए बोली लगाकर कोई सिर्फ नाम के अलावा क्या हासिल कर लेगा। वो कहते हैं कि PIA का नाम तो बदनाम है, लेकिन फिर भी ये ब्रांड है।
इस बारे में पीआईए के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज खान का इस मुतालिक कहना है कि कौमी एयरलाइन के पास इस वक्त 33 तैयारे हैं, जिनमें 17 A320, 12 बोइंग 777 और 4 ATR जहाज शामिल हैं। पीआईए के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पीआईए की बोली बहुत कम लगाई। पीआईए के पास इस वक्त 33 तैयारे मौजूद हैं, जबकि इसके मशरिक़ वस्ता समेत चीन, तुर्की, मलेशिया और कनाडा तक रूट्स हैं। सिर्फ पीआईए के हीथ्रो रूट्स की मालियत बोली की कीमत से 3 गुना ज्यादा है। कंपनी की मुंसलिक जायदादें और 33 तैयारों का बेड़ा इसके अलावा है। इतनी बड़ी फजाई कंपनी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाना एक मजाक और इसे $1 की मालियत का कहना तंज के सिवा कुछ नहीं। अब्दुल हफीज का कहना था कि पीआईए के मुलाजमीन की तादाद 7,000, जबकि योमिया उजरत पर काम करने वालों की तादाद 2400 से जायद है। व्यूवर्स, अब सवाल यह है कि क्या अब पीआईए की निजकारी मजीद मुश्किल हो जाएगी? मोहम्मद जुबैर के मुताबिक अगर हुकूमत पाकिस्तान ब्लू वर्ल्ड सिटी की पेशकश को रद्द कर देती है तो इससे सिर्फ पीआईए नहीं बल्कि निजकारी का पूरा अमल ही मुतासिर होगा। अब पीआईए नहीं बल्कि बहुत से दिगर इदारों की निजकारी पर भी सवालिया निशान बन जाएगा। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि पीआईए सालाना 100 अरब का नुकसान कर रही है। पीआईए की निजकारी का पहला मकसद ये है कि इस नुकसान की वजह से हुकूमत और अवाम पर जो बोझ पड़ रहा है उसे खत्म किया जाए। दूसरा मकसद ये होना चाहिए कि ऑपरेशन ना सिर्फ जारी रहें बल्कि ये बढ़ें भी और एयरलाइन की सर्विस का मेयार भी बेहतर हो। अब काबीना इस बोली को रद्द करती है या कबूल करती है, इसका फैसला तो आने वाले चंद दिनों में ही होगा, क्योंकि इस ज़ाब्ते के मुताबिक निजकारी कमीशन इस बोली को वफाकी काबीना के सामने पेश करेगी। नेशनल करियर की इस कम कीमत की बोली के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने पीआईए खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की जानिब से वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान को लिखे गए खत में कहा गया है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पीआईए की नीलामी के अमल में हिस्सा लेना चाहती है। हम नहीं चाहते कि यह कौमी इदारा बैरूनी या निजी हाथों में जाए। सूबाई हुकूमत के बोर्ड ने खत में मजीद लिखा है कि निजी कंपनी की 10 अरब रुपए से जायद से नीलामी शुरू करने को तैयार है। वफाकी हुकूमत हमारी दरखास्त कबूल करे। पंजाब हुकूमत ने भी पीआईए की खरीदारी पर गौर शुरू कर दिया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बड़ा ऐलान भी सामने आया है। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ख्वाहिश है कि कौमी एयरलाइन पीआईए को पंजाब हुकूमत खरीद ले और इस कौमी इदारे की असर-ए-नो तामीर करके इसे मुनाफा बख्श और जदीद तकाज़ों के मुताबिक चलाया जाए और मुल्क की मईशत पर खसारे और बोझ को कम किया जाए। व्यूवर्स, पीआईए को कौन खरीदेगा इसका फैसला तो चंद दिनों में हो जाएगा। बहरहाल आप अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।